Okay, I think someone started the recording. Yes, thank you so much. Okay, so this is the encoder and decoder part. As you know that the place or the machine where the sender reside, that is the encoder part. Okay, that यहाँ पर हम लोग encoder मिलेगा, and at the receiver side we'll get the decoder part. Okay, so you can see here we have a data word. Okay, and the basic concept, the central concept is that you have a data word, you do some manipulation. Okay, you do some manipulation and generate the code word. Okay, so that is the basic concept you all know. Okay, you have a data word, you do some manipulation and you generate the code word. That code word will be sent to the receiver. Your receiver will receive that code word, will check and will decide whether the code word can be accepted or not. Okay, if it can be accepted, then it extract the data word from that particular code word. It take the data word and the remaining bits, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं redundant bits, those bits are removed. Okay, and the data word is extracted from that code word. Okay, that is the central concept behind this block coding. Okay, तो ये चीज आप लोग को पता है, बट यहाँ पर अब देखो हम लोग ने नाउ इन द प्रीवियस वन वी हैव सीन द पैरिटी चेक कोड. ओके, इन दैट पैरिटी चेक कोड व्हाट वी हैव सीन, we have to add one extra bit. Okay, that was the redundant bit, so we have to add one extra bit so that the number of ones become even in our data word. ठीक है, तो वो हम लोग का डेटा वर्ड से बना कोड वर्ड, एक बिट एक्स्ट्रा ऐड किए और बन गया कोड वर्ड. ओके, एंड आफ्टर गेटिंग द कोड वर्ड व्हाट वी हैव डन, कोड वर्ड आई सेंड टू द रिसीवर. ओके, रिसीवर को सेंड करने के बाद में रिसीवर ने उसमें से चेक किया, डिसीजन लॉजिक लगाया, चेक किया और उसमें से रिडंडेंट बिट हटाया, and the data word was accepted or rejected based on the checker. Okay, decision logic. जो हमारा parity check था. Now in CRC, okay, we are going to deal with something. Okay, with some more parameters. Okay, that we'll see. So एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या भाई साहब बोल रहे हैं, पहले एक बार ये भी देख लेते हैं. आपको पहले थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको फुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, so we have few terms. Let me show you with the help of my pen tablet. That is एक सेकेंड, इसको मैं रख लेता हूँ. Okay. Okay, now it's working. Okay, so as I told you that we have a central concept that at the this is the encoder part and this is the decoder part. So this is encoder and this is decoder. This is at the center side, this is at the receiver side. This is my transmission media. Okay, this is my transmission media. Okay, so I have a data word. This is I'm just explaining you the basic and the central concept behind the block coding. Okay, and afterward we will understand. जो मैंने अभी समझाया आपको वही समझा रहा हूँ मैं, लेकिन अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, सो विल अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस इज माय डेटा वर्ड. ओके, दिस इज माय डेटा वर्ड DW. ओके, जो कि हमारा के बिट का होता है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ दोबारा, इंपॉर्टेंट है इसलिए. ठीक है, सो यू हैव अ डेटा वर्ड विच इज ऑफ के बिट. ओके, के कैन बी ऑफ एनी साइज. ओके, और उसके अंदर फिर हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करते हैं. वी गिव इट टू द जनरेटर मॉड्यूल. वी हैव अ जनरेटर मॉड्यूल. इसकी साइज बहुत ज्यादा मोटी मोटी नहीं होगी, इतनी काफी है. ठीक है, so we'll give it to the generator and then generator will give it to the, will give us the code word. Okay, that will be the code word CW. Okay, which is of n bit. अब दोनों की साइज सेम तो नहीं हो सकती. अब जाहिर बात है इसमें जब जनरेटर ने कुछ तो मैनिपुलेशन किया होगा, so we will be getting some another size. Okay, so we have a code word which is of size n. Okay, so now this particular code word will be sent to the receiver. See, this code word will be sent to the receiver. योर रिसीवर विल रिसीव दिस कोड वर्ड रिसीव किया भाई साहब ने, और इसको उसके पास में एक मॉड्यूल रहेगा चेकर नाम का. ठीक है, सो वी कॉल इट एज अ चेकर. ओके, वो चेकर एक नाम दिया है, अब वो जो भी मॉड्यूल जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है वो अलग करेगा. ठीक है,
but we have given it a name, that is a checker. Okay, and this is the generator. Okay, so we have a checker over here who is going to check whether the code word is correct or not. Okay, if it is correct, then क्या करेंगे, इसमें से डेटा वर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे. We will extract the data word एंड बेस्ड ऑन द डिसीजन लॉजिक, जो मतलब उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे और इसमें से हम लोग डेटा वर्ड निकाल लेंगे. ठीक है, तो अगर एक्सेप्ट हुआ तो डेटा वर्ड निकालेंगे और अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये इट कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड. अगर एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पर आपका डेटा वर्ड निकल जाएगा, बाकी के रिडंडेंट बिट निकल जाएंगी. तो ये आपके जो रिडंडेंट बिट है दैट विल बी रिमूव्ड. ओके, दैट विल बी रिमूव्ड. तो आपके redundant bit will be removed and the data word will be extracted from the code word and it will be accepted. ठीक है, तो ये सिंपल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आगे चल के भी चलने वाला है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली वी आर हैविंग द डेटा वर्ड. ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा पहले मैं हाईलाइट करवाता हूँ, तो समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन पूरा लेक्चर लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप लोग कर सकते हैं आराम से. सो इमेजिन वी आर हैविंग द डेटा वर्ड ओवर हियर. यू कैन सी हमारे पास डेटा वर्ड है विच इज 4 बिट. ठीक है, तो हमारे पास में k इक्वल्स टू कितना है, 4 है. ठीक है, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. So this is the data word which is of k size, that is k equals to 4, because you can see a0, a1, a2, a3. तो size कितनी होगी, 4 होगी. Okay, now along with these 4 data words I have appended. Okay, what we have to do in the CRC, we have to append. अच्छा, इसके अलग अलग वो है, मतलब अलग अलग जिसको बोलेंगे ना थियरीज है, जिसके अंदर हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नाउ दीज 4 बिट्स विल बी गिवन टू द जनरेटर. ठीक है, तो चलो a0, a1, a2, a3 भाई साहब हम लोगों ने दे दिए. किसको दे दिए, जनरेटर को दिए. तो इसके पास में पहुंच गया a0, a1, a2 और a3. ठीक है, 4 बिट पहुंच गए. अब इनका कहना है कि यू हैव टू अपेंड n माइनस के नंबर ऑफ बिट, n माइनस के नंबर ऑफ जीरोज. इनका 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 क्या बोलना है, n माइनस के नंबर ऑफ जीरोज, n माइनस के नंबर ऑफ जीरोज आपको अपेंड करना है अपने डेटा वर्ड के साथ में. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कॉम्बिनेशन है. यू कैन जस्ट गो थ्रू द डायग्राम. कहाँ है डायग्राम, सॉरी ये हमारा जो है. यू कैन सी दिस कॉम्बिनेशन, सी दिस इज अ कॉम्बिनेशन C7,4. as I told you that k how this combination works, this code is of n comma k combination. ठीक है, so what is the value of n equals to 7 and k equals to 4. as यहाँ पर हम लोग को पता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पता है, तो n equals to 7, k equals to 4. ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन. अगर आपका डेटा वर्ड ये है, अगर आपका डेटा वर्ड ये है तो उसका कोड वर्ड, उसका इक्विवेलेंट कोड वर्ड उसका ये बन जाएगा. ठीक है, 0001 एज इट इज लिखे और यहाँ पर 011 ये आपको कैसा आया मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा. ठीक है, बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C7,4. तो एज वी नो दैट के n इक्वल्स टू 7 हुई है. ठीक है, n की वैल्यू 7 है. अब यहाँ पर बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मुझे n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस ऐड करना है, मुझे n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस अगर ऐड करना है, ये पहली थ्योरी बता रहा हूँ आपको मैं. मैंने मतलब क्वेश्चन आता है ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स, हाउ मेनी बिट्स यू हैव टू, हाउ मेनी जीरोस यू हैव टू ऐड इन द डेटा वर्ड, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, कितने बिट आपको ऐड करना है, कितने जीरोस ऐड करना है. हो सकता है मुझे 4 भी ऐड करना पड़ेंगे, 3 ही क्यों. तो पहली थ्योरी ये है कि n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस ऐड करना पड़ते हैं. n इज ऑफ 7 बिट, n इज ऑफ 7 बिट माइनस k की वैल्यू है 4. 7 minus 4 equals to कितना हो गया 3. तो how many bits we have to, how many zeros we have to add, that is we have to add 3 zeros into the data word. ठीक है, अभी क्या हुआ, a0, a1, a2, a3 as it is your data word. What the generator is doing, just remember what the generator is doing over here in the CRC. It is taking your data word as it is a0, a1, a2, a3 and it is appending 3 zeros. Okay, why it is appending only 3 zeros, because as per the calculation हमको 3 मिला है. ठीक है, तो यहाँ पर वो 3 जीरोस को अपेंड करेगा. तो ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आपका जनरेटर को देंगे और फिर यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा 0 0 0 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब ये इसको क्या करेंगे आप, इसको आप डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर से, दैट इज D0, D1, D2, D3. दिस इज द डिवाइजर विच इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. ओके, अब बोलेंगे सर डिवीजन कहाँ हो रहा है, ये अपने डिवाइजर क्यों लिए, तो मैं आपको ये डायग्राम में आगे चल के बताता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द मेन, जिसको ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया. डिवाइड करने के बाद में हम लोग को क्या मिलेंगे,
3 रिडंडेंट बिट्स मिलेंगी। सर बोलेंगे कैसे मिलेंगे, मैं बताता हूँ आपको, पहले डायग्राम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ जीरोस जो हम लोग ने ऐड किए उसके बारे में पहली थ्योरी तो आपने सुन ली है, n माइनस के नंबर ऑफ बिट जीरो करना है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है हम लोग को पॉलिनोमियल देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल फॉर द डिवाइजर एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डिवाइजर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। और आपको उसी में से कैलकुलेट करना है कितने जीरोस ऐड करना है। तो आपको देते हैं this is the polynomial which is given to it, that is x raised to 4 plus for example x raised to 3 plus for example 1, okay। तो this is the divisor अगर आपको दिया, या फिर चलो ऐसा आपको डिवाइजर दी, तो उसके हिसाब से आपका डेटा वर्ड भी अलग रहेगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं एग्जांपल यहाँ नहीं लिखता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। हम्म, तो आपको डिवाइजर में यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिवाइजर दिया नहीं है, आपको डिवाइजर की जगह पे पॉलिनोमियल दिया है, लाइक एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस 1 ऐसा आपको दिया है, ठीक है। तो आप इसमें से डिवाइजर कैसे निकालेंगे। चलो इसको पहले हम लोग लिखते हैं इसके इसके कोएफिशिएंट के साथ में। आप अगर आपको पता होगा कि कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं तो आप लोग आराम से लिख लेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू 2 प्लस एक्स रेस टू 1, ओके, प्लस एक्स रेस टू 0, ओके डन। तो यहाँ पर आपका 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, ठीक है, अभी है बराबर, या फिर कुछ और इसमें है। तो एक्स रेस टू 2 हमारा है यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका 1 आएगा नहीं आएगा, ये बन गया 0, ठीक है। उसके अलावा एक्स रेस टू 1 है हमारे पास में ये 1 है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज है, तो हमारा जो जो कोएफिशिएंट रहेंगे ये रहेंगे 1 0 1 1। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है कि पहले मुझे बताओ, नहीं तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा फिर, क्योंकि ये चीज़ फिर हो सकता है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इसको समझ सकते हैं। यू ऑल नो अबाउट दी पॉलिनोमियल्स, ओके। पॉलिनोमियल इसको हम लोग जनरेटर पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसमें से हम लोग को कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। तो दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू ऑल नो, तो इसके लिए मैंने बता दिया। तो हमेशा क्या होता है आप इसमें से कोएफिशिएंट निकालते हो, तो कोएफिशिएंट 1 2 3 4, जो इसमें से 4 कोएफिशिएंट निकल गए, 1 0 1 1 ये आपका निकल गया, ठीक है। सो दैट विल बी द डिवाइजर, ये आपका बन जाएगा डिवाइजर। कभी कभी एग्जाम में होता है, गेट के क्वेश्चंस में इसमें ऐसा पूछता है कि भाई दिस इज द जनरेटर, दिस इज द पॉलिनोमियल व्हिच इज गिवन, नाउ एक्सट्रैक्ट द डिवाइजर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो आपको उसमें से निकालना होता है। और कभी कभी एग्जाम में आपको डिवाइजर और उसका जो डेटा वर्ड है ये आपको दिया रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बताया कि यू हैव टू ऐड n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस, ओके। सो वी नो दैट के n दैट इज द कोड वर्ड की जो साइज है वो है 7 माइनस के यानी डेटा वर्ड, द साइज ऑफ द डेटा वर्ड इज 4, 7 माइनस 4 becomes 3, तो वी हैव टू ऐड और वी हैव टू अपेंड 3 नंबर ऑफ जीरोस इनटू द डेटा वर्ड, ओके, एंड देन उसके बाद में इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो पहली तो थियरी आपने ये देखा, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरी थियरी ये बोलती है कि आपके जो डिवाइजर है, डिवाइजर की साइज कितनी है, 4 है, डिवाइजर की साइज कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 करो, ठीक है, 4 माइनस 1 करेंगे तो बन जाएंगे 3। तो आपको कितने जीरोस अपेंड करने हैं, 3 जीरो अपेंड करने हैं। तो जितने भी आपके डिवाइजर की साइज है, डिवाइजर की लेंथ है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द डिवाइजर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 एंड देन दैट नंबर ऑफ जीरोस यू हैव टू ऐड और यू हैव टू अपेंड। दिस इज द सेकंड थियरी, ओके। मतलब जो अक्सर मतलब आपको वीडियोस वगैरह में मिलेंगी, मुझे मिलेगी, ठीक है। अभी आपके जो कंफ्यूजन चल रहे हैं अंदर दिमाग के अंदर के, ये सब क्यों ले रहे हैं हम लोग, तो अभी कंफ्यूजन आपका हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हाँ, ये वही पार्ट है जो मैंने आपको बताया हूँ। इन द एनकोडर पार्ट जो हम लोग ने अभी देखा, द डेटा वर्ड हैज 4 बिट्स दैट इज मतलब के बिट्स, जो कि हम लोग ने यहाँ पर 4 लिया है। द कोड वर्ड हैज n बिट्स दैट इज 7 बिट, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। तो आपका n माइनस के अगर करेंगे तो आपका 7 माइनस 4 बन जाएगा, जो कि 3 बनेगा, ठीक है। द साइज ऑफ द डेटा वर्ड इज ऑगमेंटेड बाय एडिंग n माइनस के, यहाँ पर हमारे पास में फिलहाल 3 है, जीरोस टू द राइट हैंड साइड ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो जो हमारा डेटा वर्ड है, जो कि हमारा जो भी था डेटा वर्ड, उसके आगे हम लोग को क्या करना है, n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस हम लोग को अपेंड करना है, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा वर्ड रहेगा उसके आगे 1 2 3 3 जीरो हम लोग को ऐड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग राइट नाउ। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे,
हमारे पास में डिवाइजर है, द जनरेटर यूजेज अ डिवाइजर ऑफ साइज n माइनस के प्लस वन। तो भाई साहब हम लोग को पता है कि हमारा जो डिवाइजर है अभी या तो दिया रहेगा या तो निकालना पड़ेगा, तो दैट विल बी ऑफ साइज n माइनस के प्लस वन। तो 7 - 4 + 1, अब आपको पता है ये आपका 4 होने वाला है, तो आपके डिवाइजर की साइज कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज दी रहती है। ठीक है, अब आगे का ना देखते हुए फौरन हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, एकदम फोकस करके देखो यहाँ पर, थोड़ा सा 5 मिनट का कंसंट्रेशन चाहिए आप लोग का। विल डू द डिवीजन पार्ट इन द एनकोडर साइड, और उसके बाद में फिर हम लोग डिकोडर साइड देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कहीं पर भी नजरें मत करो, यहीं पर देखो फॉर। ठीक है, so this is my data word. Okay, it was given, this is the data word जो कि मुझे this is the message which I want to transmit to the receiver. Okay, which we want to transmit to the receiver, we are the sender and I want to transmit this data word to the receiver. ठीक है, तो चलो आ जाते हैं अभी। so this is my data word, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, 1001। ओके डन। अब ये 1001 के साथ में हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करना पड़ेंगे। एज आई टोल्ड यू दैट इन द थियरी, जो हम लोगों ने प्रीवियसली वी हैव सीन कि वी हैव टू अपेंड, वी हैव टू अटैच नंबर ऑफ जीरोस। ओके, कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे केस में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपका जो डेटा वर्ड था वो था 4 साइज का, और हमारा जो कोड वर्ड था वो था 7 साइज का। तो 7 - 4 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बार बार ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो 7 - 4 मतलब 3। तो आपको कितने जीरोस अपेंड करने पड़े अपने डेटा वर्ड के साथ में, सी दिस इज योर डेटा वर्ड 1001, 11001। ठीक है, दिस इज योर डेटा वर्ड, एंड हाउ मेनी zeros we have appended with this particular data word, we have appended 3 zeros. Okay, so this is zero number 1, zero number 2, zero number 3. Okay, समझ में आया आपको इतना पहले? Okay, this is the डिविडेंड बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डिविडेंड पार्ट। ओके, अब इस डिविडेंड पार्ट को हम लोगों ने कैसे अचीव किया, दिस इज द डेटा वर्ड 1001 एंड वी हैव अपेंडेड 3 zeros, we have appended 3 zeros with the data word, so it becomes the dividend. ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया है, अभी कंप्लीट बन गया है डिविडेंड। ठीक है, 1001,000, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। ओके, मैं आपको एक काम करता हूँ, रब डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, तो भाई साहब मैं आप लोग अलग से मैं बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में एकदम अच्छे से आए ये चीज। ठीक है, सो वी हैव अ डेटा वर्ड इक्वल्स टू 1001। कहाँ है भाई, 1001 है बराबर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द 7 - 4 की कॉन्स्पेरेंसी जो है, उसके हिसाब से हम लोग को कितना हो रहा है, 3 नंबर ऑफ जीरोस हमको ऐड करना है। आराम से बोलने बोलूंगा ना, वी हैव टू ऐड 3 नंबर ऑफ जीरोस। सो हमारा जो, चलो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1001 देखो वहां पर किया हुआ है ऑलरेडी, हमारे हमारे यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, इसके लिए उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग खुद करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एंड हाउ मेनी जीरोस वी हैव अपेंडेड, 1 2 3। ठीक है, ये भी समझ में आया आप लोग को। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि आर डिवाइजर इज, कौन कौन है हमारा डिवाइजर, क्या है हमारा, आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। you know this is the divisor which has been shared between the sender and the receiver. ठीक है, D0 D1 D2 D3। okay, so this is my divisor, और डिवाइजर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर डिवाइजर हम लोगों ने लिया है 1011। ओके, जो कि आपको एग्जाम में या तो दिया रहेगा या फिर आपको एक एग्जांपल दिमाग में सोच के ले जा सकते हैं। ठीक है, डिवाइजर कैलकुलेशन का एक अलग थियरी है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। डिवाइजर को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग बड़ा डायग्राम है, आपके फॉरसन बुक में ऑलरेडी है, तो उसको अगर देखना है तो आप वहाँ पे उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास में डिवाइजर है, या तो एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं रहेगा तो आप एक डिवाइजर सोच के जा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं। ठीक है, सो ये हमारा डिवाइजर 1011। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1011। तो सो दिस इज माई डिवाइजर, दिस इज माई डिवाइजर, दिस इज माई डिविडेंड। ओके, अब मुझे इसको डिवाइड स्टार्ट करना है। ठीक है, अब तक मुझे कोड वर्ड मिला नहीं है, ध्यान रहे, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ कोड वर्ड टिल नाउ। ठीक है, ये हमारा डेटा वर्ड था, ये हमारा डेटा वर्ड था, और ये नंबर ऑफ जीरोस वी हैव एडेड, वी हैव अपेंडेड टू द एग्जिस्टिंग डेटा वर्ड। ओके, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया है। ठीक है, पहले बोलो मुझे यहाँ तक समझ में आया आपके, उसके बाद में हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे।
यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में भी अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे का आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, अब आप इसको डिवाइड करना चालू करो। कौन करेगा डिवाइड? 1011 वन जार 1011, ओके। 1011 डबल वन जार 1011, ठीक है। नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एक्स और ऑपरेशन ओवर हियर, नॉट द सब्ट्रैक्शन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन करना है, ठीक है। एक्स और ऑपरेशन किया तो वन प्लस वन जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो जीरो जीरो, वन प्लस वन जीरो, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो, लेफ्ट मोड भी जीरो आ गया आपका, ठीक है। एक ये जीरो को नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, अपना जो डिवीजन करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो जीरो को आपने नीचे लेकर आ गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया 4 बिट का। जब लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो हो, जब लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो हो, तो हमेशा जो आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? जीरो आएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका लेफ्ट मोस्ट बिट, अच्छा इसको तो आप चलो भूल जाओ अभी, आपका लेफ्ट मोस्ट बिट, क्योंकि आपको 4 बिट कंसिडर करना है, ठीक है। ये आपके 4 बिट्स, ठीक है। तो अगर आपका लेफ्ट मोस्ट बिट अगर जीरो है तो क्वेश्चन में आपका जीरो आएगा। तो 1011 जीरोज आर ऑल जीरो, ठीक है। तो जीरो 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 जीरो, ये ठीक है, ये क्लियर है आपको? एक्स और करो, जीरो 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 जीरो, बोलो क्या है? जीरो जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, एक्स और जीरो जीरो, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट बिट को छोड़ दो, हटा दो, ये नीचे जीरो को लेकर आ जाओ, ठीक है। ये आ गया जीरो। अब मुझे बताओ, आपका लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है? नहीं है, ठीक है। जब लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो नहीं है तो यहाँ पर कोई आपका क्वेश्चन में आएगा वन, ठीक है। तो 1011 वन आर 1011। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे अभी मुझे बोलो, हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस खाली आपको जैसा डिवीजन करते वैसे ही करना है, यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन करते जाना है, ठीक है। जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, प्लस नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्स और बोलना चाहिए एक्चुअली। तो जीरो वन वन, जीरो वन वन, जीरो 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 एंड वन वन जीरो, ठीक है। अगेन हमारे पास दो जीरो आ गए, इसको उठा के फेंक दो और ये जीरो को नीचे ले लो, ठीक है। आफ्टर गेटिंग अ 4 डिजिट, द लेफ्ट मोस्ट बिट इज जीरो। क्या है? लेफ्ट मोस्ट बिट इज जीरो। लेफ्ट मोस्ट बिट अगर जीरो है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? क्वेश्चन में जीरो आना चाहिए। तो 1011 जीरो ऑल जीरोस, ओके। जीरो 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 एंड इट बिकम्स जीरो वन वन, जीरो जीरो जीरो। छोड़ो, जो लेफ्ट में आपका जो सबसे वाला बिट है इसको छोड़ दो, हटा दो। अब बच गया आपके पास में कितने बिट बच गए? 3 बिट बच गए। तो ये बन गया, आप ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई, क्या बोलेंगे इसको? आई नीड आंसर्स फ्रॉम योर साइड। जो लास्ट में जो बचा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल्दी बोलो, टाइम नहीं हमारे पास में, खाली 8 8 मिनट्स है, 5 7 मिनट्स है हमारे पास में खाली। कम से कम इतना पार्ट तो आप समझ लें। नहीं मालूम किसी को? रिमाइंडर, वही तो, ये हमारा बचा रिमाइंडर, ओके। सो ये हमारा बचा है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 110, ठीक है। अब बोलो, अब यहाँ पर एकदम ध्यान से देखो, हमारा कोडवर्ड कैसे जनरेट होगा, कोडवर्ड कैसे बनेगा, ठीक है। हमारा कोडवर्ड ऐसे फॉर्म होगा कि हमारा जो डेटा वर्ड था, ये था हमारा डेटा वर्ड, ठीक है। तो हमारा डेटा वर्ड था 4 बिट का, ठीक है। मैं इसको पहले ब्लॉक के थ्रू बताता हूँ आप लोग को। तो हम ये हमारा डेटा वर्ड है, ठीक है। तो 4 बिट का डेटा वर्ड था, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। इन ऑर्डर टू जनरेट द कोड वर्ड, ये पहले ऐसा मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, विच इज 1001, ठीक है। और आपके पास में ऑब्वियसली 3 डिजिट का एक रिमाइंडर बचा हुआ, ठीक है, बिकॉज पूरी सेटिंग वैसे ही है, ठीक है। 7,4 के अंदर रिमाइंडर, आपको 3 बिट का रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो आपके पास में रिमाइंडर जो बचा है वो 3 बिट का बचा है। उस 3 बिट को यहाँ पर आप ऐड कर दो, दैट इज 110, और ये बन गया आपका कोड वर्ड। समझ में आया यहाँ तक? पहले आपको समझ में आया तो रिप्लाई दो, समझ में आ रहा है सर। क्या किया है हम लोगों ने? अपने डेटा वर्ड को सबसे पहले लिया, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, दोस्त जिनको थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ रहेगा तो वो समझ सकते हैं। ये आपका डेटा वर्ड, ठीक है, 1001 विच वॉज गिवन, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नो दैट के अकॉर्डिंग टू 7 - 4 किया आपने, बिकॉज यू नो आप क्या। अच्छा, दूसरी चीज, चलो अब आप बोलेंगे सर हमको कोडवर्ड नहीं पता, कोडवर्ड की साइज नहीं पता। सो द डिवाइजर विल बी गिवन टू यू, एज आई टोल्ड यू इन द सेकंड केस, द डिवाइजर विल बी गिवन टू यू। आपको कोई पॉलिनोमियल वगैरह दिया रहेगा, ठीक है।
उसके अंदर चलो वापस मैं जाके बताता हूँ कहाँ था वो हमने रब कर दिया ना एक्चुअली। हाँ हम लोगों ने रब कर दी। मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो डिवाइजर है पॉलिनोमियल में से आपका डिवाइजर फॉर एग्जांपल निकला है 1011 निकला है, तो ये इसमें कितने बिट है टोटल, 4 बिट्स है। ठीक है, तो 4 बिट्स माइनस तो 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 बिट्स मिल जाएंगे। तो ये आपको 3 नंबर ऑफ जीरोस आपको अपेंड करना है। ये भी आपके लिए एक हिंट है, ये भी आपके लिए पास में एक ट्रिक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अपेंड द जीरोस। ओके, तो सिंपल ये आपका समझ लो, बाकी सब छोड़ो। तो पॉलिनोमियल अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया रहेगा इस तरीके से x⁻³ प्लस एक्स प्लस 1 फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है, तो आपको इसमें से कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट से आपको ये बनाना है। और इसमें अगर फॉर एग्जांपल 5 बिट होते, फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता, तो हमारा इसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ बिट जीरो मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस ऐड करते, 5 बिट्स माइनस 1 दैट इज 4 नंबर ऑफ जीरोस हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल ट्रिक, यू जस्ट रिमेंबर फॉर इट। ओके, सो वी हैव गॉट दिस डिवाइजर। ओके, हम लोग को हमारे पास में डिवाइजर भी है। द डिवाइजर -1 मतलब द लेंथ ऑफ द डिवाइजर -1 बिकम्स 3। सो 3 नंबर ऑफ जीरोस हम लोगों ने ऐड किया। या सिंपल अगर आपके पास में एन और सी का कॉम्बिनेशन है, सी एन कॉमा 4 के, सो ये 7,4 का कॉम्बिनेशन 7 - 4 = 3। तो ये कॉम्बिनेशन, ये वाला थ्योरी भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू अपेंड 3 नंबर ऑफ जीरोस ओवर हियर। सो हम लोग ने 3 जीरोस ऐड किए, ये बन गया आपका कंप्लीट डिविडेंड। ठीक है, ये बन गया आपका कंप्लीट डिविडेंड। ठीक है, अब इस डिविडेंड को लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो 1011 1 जार 1011। ठीक है, आप इसके अंदर एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 110 011 000 1 + 1 0, सॉरी 1 एक्सओर 1 0। हमेशा जो लेफ्ट बिट रहता है, जो हमेशा आपका लेफ्ट वाला बिट रहेगा उसको हटा देने का। ठीक है, इसको आपने रिमूव कर दिए। अब आपको एक नीचे लाना है, एक जीरो को नीचे लाना है। सो यू विल गेट दिस जीरो डाउन। सो यू गॉट द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट आपको मिल गया कोड 0100। ठीक है, सो नाउ जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी आपका डिविडेंड जो यहाँ पर है, तो इसमें आपका जो लेफ्ट मोस्ट बिट अगर जीरो है, अगर लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है तो क्वेश्चन में जीरो आएगा। ठीक है, तो 1011 जीरोस ऑल जीरोस। ओके, ये आपको पता है। तो 000 000 101 000 लेफ्ट मोस्ट बिट है जीरो, हटा दो इसको, मतलब सॉरी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको हटा दो। अब बच गया अपने पास में 100, एक और जीरो को नीचे ले लिए 1000। आपका लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो नहीं है, 1 है। 1011 1 जार 1011, यू गॉट 011, अगेन लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है, जीरो को नीचे लिए तो 0110। तो 1011 जीरोस 0000 101 101 000, ये लेफ्ट बिट को हटा दिए, आपके पास में बच गया 110। क्या किया हम लोगों ने, इस रिमाइंडर को हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, कोड वर्ड आपके डेटा वर्ड प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो डेटा वर्ड और रिमाइंडर को मिला के आपका बन गया कोड वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोड वर्ड बन गया है। ठीक है, अब डायग्राम देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा स्टार्ट करते हैं, वापस से प्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब जो आप लोगों ने अभी सीखे हैं उस चीज को यहाँ पर अप्लाई करो। ठीक है, कहाँ गया मेरा कर्सर है। ठीक है, सो नाउ अब आपके पास में जो डेटा वर्ड था, अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आएगा। जो डेटा वर्ड हम लोगों ने लिए थे वहां पर 1001, तो ठीक है 1001 आपका डेटा वर्ड था। उसमें आपको पता चला कि नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 हैं। ठीक है, आपको अपेंड करना है, तो आपका क्या बन गया 1001 000, तो ये बन गया। जनरेटर ने क्या किया, उसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, इस डिवाइजर से डिवाइड किया। क्या था हमारा डिवाइजर, क्या था हमारा डिवाइजर, हम लोग ने 1011 लिए थे, तो 1011 ये हमारा डिवाइजर था। इट वाज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर आल्सो एंड टू द रिसीवर आल्सो। ठीक है, दोनों को शेयर करना पड़ता है, बिकॉज द सेम डिवाइजर वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू टेक आउट द डेटा वर्ड फ्रॉम द कोड वर्ड। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिवाइजर वी हैव एंड दिस, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किए, तो हम लोग को रिमाइंडर मिला R0 R1 R2। ठीक है, एंड R0 R1 R2 क्या था आपको पता है, 110 था। ठीक है, सो आपको मिला ये 110 आपको मिल गया, और डेटा वर्ड जो था आपका ऑलरेडी 1001 था। तो आपका कोड वर्ड क्या बन गया, बताओ मुझे कोड वर्ड
10011110. So it becomes your code word, and this code word we have transmitted from the sender to the receiver. तो ये code word आपका यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है. After receiving the code word by the receiver, what it is going to do? Again it is going to check, ठीक है. भाई साहब आपने चेक करके भेजे, वो भी तो चेक करके लेगा ना, ठीक है. तो वो जब चेक करके लेगा तो देखो पॉसिबिलिटी हमारे पास में दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है. नाउ अगेन फोकस, थोड़ा सा एक सेकंड और फोकस करो. रिसीवर पार्ट हम लोग आज नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक मच टाइम. तो हम लोग इसको कल ही करेंगे, कल तो छुट्टी है. देखेंगे फिर अगर जैसे भी टाइम मिला तो हम इसको कर लेंगे. सो रिमेंबर यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, केस नंबर वन और केस नंबर 2, ठीक है. केस नंबर 1 हो ये हो सकता है कि आपका कोडवर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रैवल करते 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 रिसीवर तक पहुंच गया विदाउट एनी एरर, ठीक है, विदाउट एनी एरर. ओके, इसमें कोई बिट में चेंजेस नहीं आए, ठीक है. तो यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से प्रोसेस हुआ चेकर के पास में, और चेक होके आपका डेटा वर्ड उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है. केस 1 ये हो सकता है. और केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 ये हो सकता है कि हमारा जो कोडवर्ड है इसमें फॉर एग्जांपल आपका ये वाला बिट है, ये 1 का 0 हो गया, या ये वाला बिट आपका 0 का 1 हो गया. कुछ तो चेंजेस हो गए, ठीक है. तो ये चेंजेस हो गए और मतलब आपका डेटा क्या हो गया? तो करप्टेड हो गया. आपका डेटा क्या हो गया? करप्टेड हो गया. और जब डेटा करप्ट होगा तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा. तो हम लोग दोनों केसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो अगले लेक्चर में हम लोग दोनों केसेस देखेंगे वेयर द कोड वर्ड वॉट एवर द रिसीवर हैज रिसीव्ड इज अनकरप्टेड, मतलब कुछ करप्ट नहीं हुआ है. तो दिस इज द केस नंबर 1 वी विल सी फर्स्ट, एंड देन अगर डेटा आपका कोड वर्ड अगर करप्ट हो जाता है तो विल सी दैट केस नंबर 2, ठीक है. सो ये बोथ द केसेस आर इम्पोर्टेंट. ये सब मिलाकर आपका सीआरसी बनता है, ठीक है. यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है, रुकते हैं. और बाकी का हम लोग जो रिसीवर पार्ट है, जो डिकोडर पार्ट है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. I hope everyone has understood. Please let me know whether you have understood or not, and please stop the recording. Okay. ये चीज़ ऐसी है CRC कि आगे चल के बहुत जगह पे यूज़ होती है. आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड, मतलब काफ़ी जगह पे इसको CRC को यूज़ करते हैं आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए. ओके.